Good morning, everyone. Hi, how are you all? I hope you all are fine at your places. Since you all know that yesterday we completed number one chapter, Sociology and Society, and today we're gonna start number second chapter. All right. And as usual, I'm gonna share my screen with all of you. So here I go. Here I go. I hope my screen is visible on your screen as well. So here I go. Okay. So before I move or proceed further to number second chapter, I think we should discuss the textual questions of chapter number one. I think we should do that. Okay, so let's start the class. Okay, so this is yes, this is what I wanted to discuss with you. Okay, so I've already told you that 11th class is not, it's not just about doing question and answers. It's about, making your foundation strong. It's all about making your foundation, having your basics clear, and then only you will able to understand the things further in 11th as well as in 12th standard, because 11th and 12th standard are very much interlinked to each other. So it's very important for all of you to get the best understanding of the concepts and to get the best understanding of the basics, right? So I think we should discuss, by not taking much time, I think we should discuss the textual questions of your book number one, in fact chapter number one. All right. So this is the first question, right? So why is the study of the origin and growth of sociology important? Look, when you talk about 11 standard books of this subject, or of any other subject, the questions are very limited. As you can observe here also, the questions are very much limited. They are just three or four in numbers. Why? Because the focus is not on to learn and uh, get best understanding of the questions, but the focus is on to get a good foundation, right? That's the reason questions are very limited. एंड अगर क्वेश्चन कंसेप्ट्स के हिसाब से अगर आपके क्वेश्चन देखे जाते तो ऑब्वियसली यू स्टडीड ऑलमोस्ट 10 कंसेप्ट्स इन दिस चैप्टर, सो उस हिसाब से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो होने ही होने चाहिए थे, बट देर आर फ्यू क्वेश्चन, राइट? व्हाई? बिकॉज फोकस इज ऑन टू हैव अ गुड फाउंडेशन, राइट? बट स्टिल जितने भी क्वेश्चन है वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम, राइट? So first question, why is the study of the origin and growth of sociology important, right? सो आई एम श्योर जब मैं आप सबको एक कंसेप्ट पढ़ा रहा था जिसमें था, जिस कंसेप्ट का नाम था, मैंने आपको दो कंसेप्ट पढ़ाए थे, इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वाज एक्चुअली हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ द सोशियोलॉजी, और दूसरा मटेरियल इश्यूज, राइट? जब हमने मटेरियल इश्यूज पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम, basically if I take the name of any country then it would be like England. So England से industrial revolution start हुआ, then capitalism start हुआ जिसमें people were trying to extend their capital, people were trying to exploit the laborers that were working in the industry. So capitalism system था जिसमें the industrialist or capitalist or the people who have the property or the capital, they wanted to increase their capital, they wanted to increase their factories and capital or wealth, right? So capitalism system industrial revolution के साथ साथ आ गया यूरोपियन कंट्रीज में. So कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट सिस्टम अगर आया, एक सोशल सिस्टम एक कैपिटलिज्म सिस्टम फॉर्म में आया जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, जो एक सोशल सिस्टम था उस वक्त इंग्लैंड में. जब हम 18-19 सेंचुरी की बात करते हैं, एनलाइटमेंट पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने लेट 17 और 18 सेंचुरी में हमने जो पढ़ा था, एनलाइटमेंट पीरियड जिसको हम कहते हैं period of reason or age of reason, where people started questioning themselves, where people started finding answers, of the things around them, right? So enlightenment period जैसे ही आया उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इंग्लैंड में आया, जिसकी वजह से एक सोशल सिस्टम सेटअप हुआ, उसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, in which people wanted to increase their capital, right? Capital means property, asset, or any kind of things that people own. It could be land, it could be factories, right? So उसमें उस कैपिटलिज्म सिस्टम में इंडस्ट्रियलिस्ट दे वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ और दे वांटेड टू बिकम रिच ओवरनाइट, राइट? जैसे भी
by by exploiting laborers, by giving them less wages, by giving them less salary. So that's what actually was happening, right? So kahin na kahin उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आया या कैपिटलिज्म सिस्टम सेटअप हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सर्टन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई सोसाइटी में. अर्बनाइजेशन आ गया, people started shifting from villages to urban areas. So urbanization bhi aaya, for the sake of work or to get or seek work, people start shifting from villages to the urban areas. और उसकी वजह से certain problems create hui. You can simply get an example like urban areas mein what happens, slum areas bahut zyada hote hain. Kyun slum areas bahut zyada hote hain? Jahan pe jo people, poor people who work in the factories or who work as a laborer in the factories or industries, unko ek proper place nahi milti hai rehne ke liye, to reside. They don't get गुड प्लेसेस. सो उसकी वजह से स्लम एरियाज बन जाते हैं और वहाँ पे सैनिटेशन कंडीशंस भी इट इज एक्चुअली एट्रोशियस, वेरी बैड, राइट? सो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आने लगी. और जो भी इश्यूज सोसाइटी में क्रिएट हो रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन या कैपिटलिज्म की वजह से, एक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गई लोगों की. लोगों को एक कमोडिटीज समझा गया. कमोडिटीज मीन उनको सिर्फ ऑब्जेक्ट समझा गया. उनको I've used the word rational calculation. एक रैशनल कैलकुलेशन के बेसिस में लोगों को खरीदा गया कि you have to work here in this factory and we will pay you 500 or 1000 or whatever, वो लोगों की लेबर्स को खरीदा गया. उनको एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया, जिसको हम कमोडिफिकेशन कहते हैं. फर्दर in the following chapters you will definitely use these words, or you definitely hear all these words. Commodification हो गई इन सबकी, right? So कहीं ना कहीं बहुत सारे issues were actually coming out of the societies, whether I'm talking about European societies or any kind of society, especially European societies, क्योंकि वहाँ से industrial revolution start हुआ. So बहुत सारे issues create हुए. So at that particular time there was a need that was felt. There was a need that was felt to have a discipline, to have such subject that could study all these societal problems, that could study all these societal issues. So which subject fulfilled all those needs to study these societal problems? Obviously sociology came after these industrial revolution or capitalism ke around. Sociology came in because there was a need that was felt, that could there was a need that could felt that could study. There was a need for a subject that could study all these things, and obviously sociology came out and study all these societal problems जो different social phenomena की वजह से, different social processes की वजह से, different social changes की वजह से जो issues हो रहे थे उनको study करने के लिए we felt the need. And very early sociologists, philosophers, they felt the need कि कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है जो सारी सोसाइटी को एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एक तरीके से स्टडी कर सकता है. एंड ऑब्वियसली सोशियोलॉजी वाज देयर, राइट? सो इसलिए हम स्टडी, जब हम ओरिजिन और ग्रोथ की बात करते हैं इस सब्जेक्ट की, तो हम कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जाते हैं, राइट? तो इट वाज अ काइंड ऑफ thing that I wanted to discuss with you. The study of origin and growth of societies are important. Look, I'm using my cursor, right? The study of origin and growth of societies are important in sociology to understand several personal and social issues, right? So several social and personal issues were actually prevailing, were actually coming out of the societies, right? So England was the center of industrial revolution. ये चीज हमने when we studied the concept of material issues, उसमें हमने ये पढ़ा था कि industrial revolution इंग्लैंड से start हुआ, right? So England was the center of industrial revolution. You all know that, right? And the understanding of how urbanization or factory production influence all modern society is very important. So कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से कंप्लीट सेटअप ऑफ द सोसाइटी चेंज्ड, राइट? लोगों के वे ऑफ वर्किंग और लोगों का इंटायर सेटअप, सोशल सेटअप चेंज हो गया. और उसकी वजह से जो भी इश्यूज आए, पर्सनल इश्यूज, सोशल इश्यूज, उन सबको स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी केम आउट, राइट? सो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स ओरिजिन एंड जब हम सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमें दो एस्पेक्ट से समझना पड़ेगा सोशियोलॉजी ऑफ रिलेटेड टू यूरोपियन कंट्रीज, और इंडिया का भी एक एस्पेक्ट समझना पड़ेगा, राइट? दैट्स द रीजन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अलग होते हैं और यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं. तो दोनों की थिंकिंग को समझ के चलना बहुत जरूरी है, राइट? सो sociology of India reflects origin and growth of people, social institution and their problems, right? Okay, so what does this mean? This means that कि सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया में
सिर्फ हमारे कल्चर ही नहीं, हमारी सिविलाइजेशन ही नहीं, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी, हमारा कल्चर या हमारी सोसाइटी सिर्फ यूरोपियन की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं हुई, बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से भी इन्फ्लुएंस हुई। हम सारा क्रेडिट यूरोपियंस को नहीं दे सकते। जब उन्होंने यहाँ पे कॉलोनीज बनाई, व्हेन कॉलोनिज्म केम हियर, वो हमें एक्सप्लॉइट करते थे, हमारे रिसोर्सेज यूज करते थे और अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और फैसिलिटेट करते थे और स्ट्रेंथन करते थे, राइट। और इसलिए कॉलोनिज्म क्यों आया? व्हाई ब्रिटिशर्स स्टार्टेड मेकिंग कॉलोनीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड? व्हाई दे स्टार्टेड यूजिंग द resources from different countries? Why they started ruling different countries of the world? The reason being, they wanted to facilitate their industrial revolution. They wanted to have a lot of resources for their industries, right? अब फैब्रिक, अगर they are making fabric or cloth, whatever they are producing, उसके लिए they need cotton, right? They need cotton, और उसके लिए they wanted to extract that raw material from different countries, right? इसलिए at that particular time colonialism में they almost ruled 50 plus nations, और उन 50 plus nations को at present commonwealth nations कहा जाता है। जब भी हम commonwealth nations की बात करते हैं, वो commonwealth nations वो सारे nations हैं जो एक टाइम पे they were under the rule of Britishers, right? So वो रॉ मटेरियल सारे कलेक्ट करते थे डिफरेंट कंट्री से, राइट? सो कहीं ना कहीं Indian history is full of imperialistic invasions. Imperialistic invasions means different Dutch ने हमें invade किया, हमारी country में आए, जिनको Netherlands भी कहते हैं, उसके बाद French आए, उसके बाद obviously Britishers आए, तो बहुत सारी imperialistic invasions हुई थी। Invasion means हमारी country में enter हुए थे। Imperialistic invasion मतलब एक policy होती है, imperialism एक policy होती है जिसका मतलब होता है कि अपनी colonies को extend करना इनडायरेक्ट कंट्रोल से, उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाना। इनडायरेक्ट कंट्रोल से कैसे? जैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, स्टार्टिंग में उन्होंने दे डिडंट ट्राई टू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑन अस। व्हाट they actually used they used East India Company. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यूज किया। They started coming in India as traders. उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ट्रेडर्स आ रहे हैं, सो हमारे एम्परर्स को, जो उस टाइम मुगल एम्परर्स थे, उनको सिर्फ उन्होंने कहा कि वी आर जस्ट कमिंग हियर फॉर ट्रेडिंग, राइट? सो प्लीज अलो अस कि हम ट्रेडिंग कर पाए, उसके लिए हम आपको कुछ टैक्स भी देंगे और कुछ मनी प्रोवाइड करेंगे कि हमें ट्रेड करने दो। सो इंपीरियलिस्टिक इन्वेशन सर्टेन पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से कंट्री एक बाद में डायरेक्ट कंट्रोल में आती है, बट इनिशियली इनडायरेक्ट कंट्रोल से एंटर करती है। सो इंपीरियलिस्टिक इन्वेशंस बहुत सारी हुई। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस नहीं था, ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हमारे ऊपर, हमारे हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत सारा इन्फ्लुएंस था। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगर इट एनहांस ड्यू टू ब्रिटिशर्स। हमारी सर्टेन इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए, हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए, हमारा एक जुडिशियल सिस्टम सेटअप हुआ ब्रिटिशर्स की वजह से। एक बहुत सारे चेंजेस आए हमारी कल्चर में, राइट? So कहीं ना कहीं Indian history is full of imperialistic invasions. In India there has been long past of feudalism. So कहीं ना कहीं imperialism से पहले या colonialism से पहले कहीं ना कहीं हमारा एक अपना सिस्टम होता था जिसको feudalism कहते थे। अब feudalism का क्या मतलब है? feudalism का मतलब ये है, I'll tell you what is feudalism. It's very important for you to understand that what is feudalism, right? So I think this is this slide. Oh no, this one. So feudalism. Look, feudalism जैसे capitalism, remember that, जैसे capitalism एक social system है एक society में, right? जिसमें industries हैं और capital extension करते हैं, laborers को exploit करते हैं, उनको less wages देते हैं। वैसे ही कैपिटलिज्म सिस्टम से पहले एक फ्यूडल सिस्टम होता था। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था? This is the hierarchy. These are the levels of feudal system. Look at my cursor. I'm using my cursor. Feudal system, not only European feudalism हर society में था, European countries में भी था, and it was existing in Indian countries, in Indian subcontinent countries and in India as well, right? So इसमें you have to get a little bit idea कि feudalism होता क्या। Feudalism में एक suppose एक top position में एक king है, right? So he's a king, right? So उसके नीचे नोबल्स हैं। नोबल्स का काम क्या होता है? नोबल्स आर एक्चुअली वॉरियर्स, राइट? that can provide military support, that can provide military service to the king, right? और
किंग को दे आर प्रोवाइडिंग मिलिट्री सर्विस, और किंग इन रिटर्न व्हाट इज किंग डूइंग देम, किंग हैज गॉट ऑल द ओनरशिप ऑफ द लैंड, राइट? एक नेशन की पूरी लैंड इज अंडर द किंग, राइट? सो किंग इज डूइंग व्हाट, किंग इज गिविंग लैंड टू द nobles. Okay, so king is giving land to the nobles. So nobles in return what they are doing to the king, what they are in return they are doing, they are giving उनको एक मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके जो वॉरियर्स हैं, उनके जो मिलिट्री है, उसके अंदर नोबल्स ग्रुप है, राइट? इसको नोबल्स कहा जाता है, राइट? सो किंग उनको लैंड दे रहा है नोबल्स को, नोबल्स इन रिटर्न उनको क्या दे रहे हैं, एक काइंड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, राइट? और उसके नीचे एक और ग्रुप है जिसको हम नाइट्स कह सकते हैं, वेसल्स कह सकते हैं। यू डोंट हैव टू कि आपको रिमेंबर करना है इनके नाम नहीं, आपको सिर्फ एक सिस्टम समझना है, राइट? सो किंग्स ने नोबल्स को लैंड दी अपनी यूज करने के लिए, और नोबल्स ने इन रिटर्न उनको मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड की। वैसे नोबल्स ने फिर वो लैंड आगे दे दी, दे उनको उन्होंने आगे एक लोअर लेवल पे दे दी, जिनको हम वेसल्स भी कहते हैं, नाइट्स पे। वैसे ही और अब क्या हो रहा है, वेसल्स वो उन लैंड पे काम कर रहे हैं, और नोबल्स उनसे जो भी उनका लैंड प्रोड्यूस जो भी प्रोडक्शन वो लैंड से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नोबल्स उनसे ले रहे हैं, और आगे नोबल्स किंग्स को भी दे रहे हैं, राइट? सो एक सिस्टम सेटअप है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है, राइट? सो कहीं ना कहीं किंग्स को सर्व कर रहे हैं नोबल्स, और नोबल्स को सर्व कर रहे हैं हमारे वेसल्स। एक दूसरे की सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, राइट? उसके बाद नीचे मर्चेंट्स, फार्मर्स और क्राफ्ट्समैन आगे, उससे नीचे फिर पीजेंट्स आगे, सब। सो एक लैंड जो एक किंग के हाथ में है, जो किंग पोजेस कर रहे हैं, वो लैंड आगे एक दूसरे के पास जा रही है, शेयर हो रही है, और लैंड प्रोडक्शन एक दूसरे को दिया जा रहा है, और एक दूसरे को सर्विसेज दी जा रही है। तो ये एक्चुअली फ्यूडल सोसाइटी होती है, इसमें सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? ये होती है फ्यूडल सोसाइटीज। और इसमें एक यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज। प्रिविलेज सोसाइटी, प्रिविलेज सेक्शन ऊपर वाली सेक्शन है, जहाँ पे वेसल्स, नोबल्स और किंग्स, जो टॉप की 3 लेवल्स है, ये प्रिविलेज सोसाइटीज है। इनके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रही है, इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। बट जो नीचे के लेवल है, जैसे फार्मर्स, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, जिसको हम सर्फ्स भी कहते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। इनको सिर्फ मेयरली जितना मैक्सिमम, जैसे वो 100% प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे 50, 60, 80% ले लिया जा रहा है, और सिर्फ उनको कुछ दिया जा रहा है कि सिर्फ वो अपना लाइवलीहुड कर पाए, और सिर्फ सब्सिस्टेंस, सिर्फ जी पाए थोड़ा सा, सिर्फ उसके लिए उनको सिर्फ सपोर्ट किया जा रहा है, और उनको अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको अच्छी तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और उनको यूज किया जा रहा है बेसिकली। सो ऊपर वाली जो सेक्शन है 3, वो प्रिविलेज्ड है, और नीचे वाली नॉन प्रिविलेज। ये है फ्यूडल सोसाइटी, राइट? दैट्स व्हाट फ्यूडल सोसाइटी इज ऑल अबाउट। वैसे ही यूरोपियन सोसाइटी में भी फ्यूडलिज्म था, और इंडियन सोसाइटी में भी फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म में यही होता है कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और लैंड यूज करते हैं, और फाइनल अथॉरिटी किंग के हाथ में होती है। ये यूरोपियन फ्यूडलिज्म है। और इंडियन फ्यूडलिज्म में भी कुछ ऐसा ही था, जैसे जिसको हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम, जिसमें किंग्स आगे जमींदार्स को लैंड देते थे, और जमींदार पीजेंट से काम करवाते थे, और शेयर ले लेते थे उनसे मैक्सिमम, और किंग को भी वो शेयर जाता था, और उनसे सर्विस लेते थे, राइट? ऑल दोस थिंग्स वर गोइंग ऑन। सो ये है फ्यूडलिज्म सिस्टम, राइट? इन चीजों को याद नहीं करना है, इन चीजों को समझना है, ठीक है? आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो ये था फ्यूडलिज्म सिस्टम, राइट? ओके, सो ये था नंबर 1 क्वेश्चन कि जब हम ओरिजिन, ओके, सो बहुत सारी इन्वेजन्स हुई इन इंडिया। देयर हैज बीन अ लॉन्ग पास्ट ऑफ फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म, कॉलोनिज्म। सो फ्यूडलिज्म भी था, इंडिया का पास रहा है, फ्यूडलिज्म भी था इंडिया में, फिर कैपिटलिज्म आया, ठीक है? थोड़ी बहुत इंडस्ट्री सेटअप होने लगी इंडिया में भी, कुछ मर्चेंट्स थे दैट वर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, बट हमारी हाई स्केल ट्रेडिंग नहीं थी। हम हाई स्केल, हमारे पास उस लेवल की मशीनरी नहीं थी जिसमें हम हाई प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है? वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही आई। ऑब्वियसली एक फ्यूडलिज्म सिस्टम था, एक कैपिटलिज्म सिस्टम था, हल्की फुल्की इंडस्ट्रीज थी इंडिया में। इंडिया भी कॉटेज इंडस्ट्री थी, इंडिया में भी कॉटेज इंडस्ट्री में स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, और उन इंडस्ट्री से इंडिया भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता था, राइट? और उसके बाद फिर कॉलोनिज्म तो आ ही गया जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आ गए। इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड टू पॉलिटिकल सेक्टर एंड कमेंसेस रिटन बाय फॉरेनर्स एंड, ठीक है? अब इंडियन की जो हिस्ट्री है वो मोस्टली इज रिटन बाय फॉरेनर्स, और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो हिस्ट्री को हम ज़्यादा बिलीव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है कि फॉरेनर्स ने
जब वो स्टडी की हो या जब वो बुक्स लिखी हो या जब वो राइटिंग्स लिखी हो या जब वो अकाउंट्स लिखे हो, उस वक्त मे बी दे वर बायस्ड, उन्होंने अब दिखाने की कोशिश की हो कि इंडियंस वर वेरी पुअर एंड इंडियंस को हमने सपोर्ट किया, इंडियंस की सारे मैक्सिमम चेंजेस हमने ही लाए, तो इसलिए हम उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, राइट? So presently Indian society can be understood in its complexity of tradition which are influenced by Turk. So हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री या थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया हम ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं, बट मोस्टली हम कौन से कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं, जब हमारी इंडिया में बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, सिर्फ ब्रिटिश इन्वेजन्स नहीं हुए थे, टर्क्स भी आए थे, मुगल्स भी आए थे, मोगल्स भी आए थे, कुशान्स भी आए थे, ये हिस्ट्री का पार्ट है, अफगान्स भी आए थे, ब्रिटिशर्स भी आए थे, मुगल्स आए थे, तो बहुत सारी इन्वेजन्स हुई थी, राइट? ब्रिटिशर्स तो हमारी कंट्री में 17 और 18 सेंचुरी के आसपास, उससे पहले सर्टन मुगल्स थे, बहुत सारे अफगान्स थे, सो हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी अपनी हिस्ट्री को समझते हैं, अपनी और अपने कल्चर को समझते हैं, राइट? सो इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स हिस्ट्री, राइट? दिस इज व्हाट इट मींस, देयरफॉर द स्टडी ऑफ origin and growth of society, origin and growth of society is important. It's basically, let me add it, it's basically sociology. Yes, sociology. So therefore, the study of the origin and growth of sociology is important for social for. Therefore, the study of origin and growth of sociology is important. Society, okay. So therefore, the study and growth of origin, society को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी वजह से हम एक सोशियोलॉजी का origin भी समझ पाते हैं. I'm sure you have understood this question, right? उसके बाद ये था feudalism system. This was feudalism system, right? उसके बाद number second question, right? So कहीं ना कहीं हमने study of original growth of sociology कहाँ से समझी थी? We understood when we studied this concept, right? Material issues. Number 7 concept, material issues that went into the making of sociology. Look at the initial lines. The industrial revolution was based upon new and capitalism, वो सारी चीजें हैं, right? That's what I discussed with you, right? Or when we talk about number second question, that is in the form of discuss the different aspects of the term society. How is it different from our common sense understanding, right? अब इसमें there are two questions कि first tell us the different aspects of the term society, कि एक society के different aspects mean different sides mean different dimensions, क्या हो सकती हैं, right? So कहीं ना कहीं this also we studied in the which concept, in previous concept before material issues we understand the इंटेलेक्चुअल आइडिया, जिसमें वी अंडरस्टैंड, आई एम श्योर मैंने बहुत सारी डिस्कशन इसके ऊपर आपके साथ की हुई है, राइट? सो अर्ली जो ट्रेवलर्स थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, अर्ली सोशोलॉजिस्ट ने उनकी राइटिंग से, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उनकी राइटिंग से दे गॉट हेल्प, कि सोसाइटीज कैसी थी. तो टू काइंड ऑफ सोसाइटीज, प्री मॉडर्न सोसाइटी जिसमें हंटर गैदर्स एंड पेस्टोरल एंड एग्रेरियन वगैरह सारे थे, और द सेकंड सोसाइटी दैट वाज ऑल अबाउट मॉडर्न सोसाइटी, राइट, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ आई. तो यही है, although there are different aspects of the term society, but we have to somewhere revolve ourselves around our textbook, right? So कहीं ना कहीं हमारे textbook के हिसाब से different society के aspects थे. So I'm sure you will definitely understand the different aspects of the term society has been made by early sociologists like Auguste Comte. Auguste Comte is the father of sociology. Karl Marx, Herbert Spencer, these are all sociologists, and they classify the societies into two broader groups: pre-modern societies or modern society. Right? ये दोनों हमारी societies थे. ये हमें intellectual ideas के through पता चली, right? और basically डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टर्म सोसाइटी में हम डिफरेंट डेफिनेशंस भी पढ़ सकते हैं सोसाइटी की, राइट? जैसे बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे डिफरेंट, लुक एट दिस, डिफरेंट हमारे सोशियोलॉजिस्ट ने दी हैं, राइट? दिस इज सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट? सो डिफरेंट डेफिनेशन, सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ व्हिच अटेम्प्ट्स इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, राइट? सो बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं सोसाइटी सोशियोलॉजी के बारे में भी, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं मटीरियल इशूज, इंटेलेक्चुअल आइडियाज के थ्रू वी अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो ये दोनों आई ऑलरेडी डिस्कस. और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग. अब I've already discussed a lot about this, कि how this subject is different from common sense understanding, right?
लुक वी हैव आवर ओपिनियन. जब हमारा एक ओपिनियन होता है रिगार्डिंग समथिंग, अगर हम उसको बहुत नेचुरलिस्टिक वे में सोच रहे हैं और हम अपने व्यू पॉइंट को, इफ वी आर नॉट क्वेश्चनिंग आवर व्यू पॉइंट, राइट, so that is what your naturalistic way of thinking is all about. That is what your common sense is all about. But the moment we start questioning ourselves, the moment we start start finding factors or reasons behind the things, and that becomes so very systematic and your, I would say, systematic or rational study is all about. So rational study, systematic study, and your empiricist study is all about your it's something that is different from this common sense understanding. All right, so I've got another thing to show you, right? I have a slide, in the form of, look at this. This is the scientific method. This is what makes it different from the common sense understanding, right? So what actually this means, scientific method. When we talk about scientific method, then there are certain steps that we follow, right? And this is what basically this slide is extremely important to understand that how this subject is different, or it is actually apart from the common sense understanding. Look what is written here: identification of the problem. We are not understanding anything, or we are not giving our opinion on anything just in a naturalistic way. When we are giving our opinion in naturalistic way, that's what common sense is all about, right? But when we are doing a proper study, when we are doing something on scientific basis, when we are backed with certain reasons, when we are backed with certain, I would say, factors or reasons or studies or observations, when we are backed with all those things, then we say that it is a proper study, it is proper scientific study. Look at that, identification of the problem. Look, what happens here is that I really wanted to discuss with you, right? It was actually not there in your book. So what happened here is that identification of the problem, right? So हम सबसे पहले identify करते हैं problem को कि problem क्या है. Suppose I can give you certain problem. Poverty है, unemployment है, terrorism है कश्मीर में. Suppose मैं terrorism की बात करता हूँ कश्मीर में, right? So terrorism हमने identify कर ली कि problem terrorism है. हम इस पे अपने common sense view नहीं दे सकते, right? हम आप इस प्रॉब्लम के ऊपर हम एक नेचुरलिस्टिक वे नहीं दे सकते जब तक हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, हमने सर्टेन ऑब्जर्वेशंस नहीं किए, हमने सर्टेन स्टडी नहीं की है. वी जस्ट कांट गिव आवर कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन टू दिस. सो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम, सपोज टेररिज्म एक प्रॉब्लम है, राइट? वो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसके बारे में हम अपने एक व्यूज ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं. और वो हम ऐसे नहीं देंगे कि हमने कॉमन सेंस में दे दी, राइट? उसके पीछे सर्टेन रीजंस होंगे, सर्टेन एविडेंस, सर्टेन ऑब्जर्वेशन जो हम करेंगे, राइट? सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम में जल्दी से डिस्कस करूंगा इन चीजों को. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम में हमने आइडेंटिफाई कर ली, सपोज प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, राइट? सो हमने टेररिज्म की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली. उसके बाद हमने एक है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नेक्स्ट स्टेप. अब रिव्यू क्या होता है? रिव्यू होती है एक फॉर्मल असेसमेंट, एक फॉर्मल एनालिसिस, जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, और बहुत ही फॉर्मल और सिस्टमैटिक वे से हम एनालिसिस कर रहे हैं, और हम उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं. और किस चीज़ को हम रिव्यू कर रहे हैं? लिटरेचर को. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेचर? लिटरेचर मीन्स राइटिंग्स जो ऑलरेडी उस प्रॉब्लम के ऊपर लिखी गई है. सपोज 2020 में हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं. अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि टेररिज्म के ऊपर कभी किसी ने कोई राइटिंग ना लिखी हो, या कभी किसी ने कोई रिसर्च ना किया हो, या किसी ने किस चीज़ को समझने की कोशिश ना की हो, या सर्टन ऑब्जर्वेशन नहीं की हो. तो हम कोशिश करते हैं जो लिटरेचर है, लिटरेचर मीन्स जो भी राइटिंग्स पहले लिखी गई हैं, सर्टन अकाउंट्स लिखे गए हैं, राइट? तो हम उस चीज़ को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, राइट? फिर उसको रिव्यू करने के बाद, उसको समझने के बाद, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद हम फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस करते हैं, जो हमारा नंबर थर्ड स्टेप होता है. फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस में क्या होता है? I've got the indication. Okay. सो फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस में क्या होता है? फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस में होता है कि हम एक असम्पशन कर लेते हैं, हम एक चीज़ को मान लेते हैं. वी एज्यूम कि टेररिज्म है. सपोज वी आर डूइंग स्टडी ऑन टेररिज्म. तो हमने हमने एक प्रॉब्लम समझने की कोशिश की. तो हमने पता चला कि हमने जब रिव्यू की लिटरेचर, हमने पिछली सारी रिसर्च पढ़े, राइटिंग्स पढ़ी, जितने हम पढ़ सकते थे हमने सब पढ़ी. उसके बाद एक हमने हाइपोथेसिस बनाया. हाइपोथेसिस होता है कि हमने असम्पशन बनाया, एक एज्यूम किया कि टेररिज्म है ये शायद इसकी वजह से, बिकॉज मिलिटेंट्स वांटेड टू अचीव जिहाद, militant wanted to go to heaven, right? इसके लिए वो they do terrorism, and
they kill people and do all these atrocious work, right? वो सारी चीजें करते हैं. ये हमारा hypothesis था, right? कि वो क्यों करते हैं? They wanted to achieve jihad, they wanted to वो सब उन्होंने इसलिए कि they wanted to achieve jihad, or they wanted to go to heaven. उनको सिखाया गया है कि आप ऐसे ऐसे करोगे, if you will fight for your religion, you will, you know, achieve jihad, and you will, you know, all those things, heaven में आप जाओगे. ये हमने एक hypothesis बना लिया, ये हमने एक assumption कर ली है अपने कि ये assumption, ये hypothesis, it can be true at the end and it can be false also. ये सही भी निकल सकती है और गलत भी निकल सकती है at the end, right? फिर हमने एक research design choose किया. रिसर्च डिजाइन का बेसिकली मतलब है कि हमने अपना रिसर्च कैसे करना है, हमने which are those areas that we will target, कौन से एरियाज को हम बेसिकली स्टडी करेंगे. जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर में, अवंतीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, और यू नो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट एंड अनंतनाग, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं. हम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हम विल स्टडी है, हम कौन से एरियाज को सर्च करेंगे, कितने दिन में हमारा रिसर्च होगा, क्या बजट होगा हमारे रिसर्च का, राइट? हम कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करेंगे या सिंपल हम बाहर से ऑब्जर्व करेंगे. पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में जो सर्टन हमारे वो करते हैं, जो हमारे सीबीआई ऑफिस या हमारे क्राइम ब्रांच या इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हमारे वो करते हैं रिसर्च, राइट, वो बिल्कुल उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने आप को चेंज करके, राइट? यू नो दे कीप बिग बियर्ड एंड यू नो दे वैसे ही बन जाते हैं, और हम बिल्कुल पार्टिसिपेट, कैसी ऑब्जर्वेशन होगी, राइट? वो सारी रिसर्च डिजाइन में, रिसर्च डिजाइन इज काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट, राइट? कैसा डिजाइन होगा, हम पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, राइट? फिर उसके हिसाब से हम आगे डाटा को गैदर करते हैं और उसके बाद उस डाटा को एनालिसिस करते हैं, उस डाटा को रिव्यू करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं. और सपोज हमने की सारी ऑब्जर्वेशन, राइट, उसके बाद हमें ये पता चला कि सर्टन मिलिटेंट्स वर इन्वॉल्व, they were doing terrorism क्योंकि they wanted to achieve jihad, because they wanted to, you know, go to heaven. उसकी वजह से they कर रहे थे. और कुछ रीजंस हमें पता चले कि they were poor actually, they were very poor and they wanted money के लिए, या उनकी conditions was, the conditions were not good, they were not financially good, और उसकी वजह से उन्होंने किया. तो कहीं ना कहीं अगर पूरी तरह यही रीजन निकलता है कि वो पॉवर्टी की वजह से कर रहे थे, they were very poor and they don't have good financial conditions, और उसकी वजह से उनको जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे उन्होंने यूज किया कि हम आपको इतनी मनी देंगे और ऐसा करेंगे, आप ऐसा करोगे हमारे लिए, यू विल डू टेररिज्म. और वो बेचारे उनकी बात में आ गए और एंड ऑफ द डे वो पूरी तरह उस ट्रैप में आ गए, राइट? तो कहीं ना कहीं हमारी असम्पशन गलत भी हो सकती है तो सही भी हो सकती है, राइट? तो ये सारा एक साइंटिफिक मेथड होता है, और ये साइंटिफिक मेथड आर यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट, और इसकी वजह से हम कहते हैं इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंस नॉलेज. ये आपको कोई नहीं बताएगा, अगर कोई आपको ये चैप्टर पढ़ाता तो शायद ये चीज डिस्कस नहीं करता, बट आई फेल्ट कि इट वाज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द साइंटिफिक मेथड कि एक्चुअली होता क्या है, राइट? तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंस नॉलेज. कॉमन सेंस नॉलेज मीन्स नेचुरलिस्टिक, without any evidence, without any scientific method, हमने कुछ चीज क्या की, right? So वो होता है हमारा, right, a scientific method. So I'm sure you will able to easily, write the answer. Sociology studies society on the basis of some rules. So some rules or principles हम follow करते हैं, right? On the other hand, our common sense understanding depends on naturalistic, और बहुत हमारा individualism view हमारा आ जाता है, जो हम सोचते हैं बस वही सोच रहे हैं और वही हम आगे we are putting forth all those things, right? वही हम आगे दिखा रहे हैं. Common sense knowledge doesn't question its origin, और common sense knowledge कभी भी अपने origin या अपनी interpretation को या अपनी statements को कभी भी question नहीं करती. बट जब हम सोशियोलॉजिस्ट एक व्यू पॉइंट रखते हैं तो हम डेफिनेटली क्वेश्चन करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं. लुक एट दैट व्हाट इज रिटन हियर. सोशियोलॉजी हैज बोथ द सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग अप्रोच, इट हैज गॉट वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच. मैंने आपको बता दी उस साइंटिफिक मेथड से कि सिस्टमैटिक अप्रोच होती है और हम क्वेश्चन करते हैं अपने अप्रोच को, राइट? एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, आई हैव टोल्ड यू साइंटिफिक मेथड, राइट? In our common sense understanding of the aspect of the term is very limited, which is quite different from that. So मैंने बहुत सारे डिस्कस कर लिए, बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कस कर लिया ये क्वेश्चन. So ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, ये जो दैट इज देयर इन दिस स्लाइड, मैंने आपको बहुत हाई लेवल की चीज एक्चुअली डिस्कस कर ली है, राइट? सो आई एम श्योर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल एबल टू रिलेट व्हाट आई एम टेलिंग यू. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, राइट? थर्ड क्वेश्चन इज ऑब्वियसली द लास्ट क्लास दैट आई टुक विद यू, राइट, यस्टरडे ओनली, कि गिव एंड टेक क्या है, गिव एंड टेक क्या है. सोशियोलॉजी कैसे दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ एक ट्रांजैक्शन है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन मींस लेन देन, राइट? गिव एंड टेक. सोशियोलॉजी का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या लेन देन है, क्या गिव एंड टेक है, क्या ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शन है, राइट? वो तो आई हैव डिस्कस अ लॉट अबाउट लास्ट क्लास, राइट? कि कैसे सोशियोलॉजी और
पॉलिटिकल साइंस का एक वो है, एक इंटरलिंक है, कैसे इकोनॉमी के साथ इंटरलिंक है, कैसे हिस्ट्री के साथ इंटरलिंक है, कैसे साइकोलॉजी के साथ इंटरलिंक है, और कैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ इंटरलिंक है. सो काइंडली टेक्स्ट मी इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड टुडे. काइंडली टेक्स्ट मी. Kindly text me. Understood. Understood. Clear. So, that is what it is all about. Look, nothing, nothing is difficult, nothing is easy. It all depends on approach, right? Look, we are keeping our approach right. मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त कि सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक से ही ना पढ़ाया जाए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सब कुछ नहीं आ सकता. आप टेक्स्ट बुक में अगर वो सब कुछ डालेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक इट विल बिकम दिस मच, इतनी मोटी हो जाएगी वो, राइट? तो उसके लिए मे बी 2000 पेजेस चाहिए होंगे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती. इसलिए आई कम अप विद द स्लाइड्स, आई कम अप विद सर्टेन डायग्राम्स, आई कम अप विद सर्टेन थिंग्स, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए. बुक में तो आपके सिर्फ फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी लिखा है या फ्यूडलिज्म लिखा है, बट एक्चुअल में वो होता क्या है, बुक ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकती, बट हमारी अप्रोच तो कवर कर सकती है ना ये. इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप अप्रोच राइट एंड सिस्टमैटिक अप्रोच. और जैसे क्वेश्चन आता है उस हिसाब से हमें अपने डायग्राम्स को सेटअप रखना होता है. इसलिए मैंने जब ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने थे, आई न्यू कि ये डायग्राम्स वर इम्पॉर्टेंट, या लुक एट दैट, या साइंटिफिक मेथड जो मैंने आपके साथ, ये इंपॉर्टेंट था. सो आई केप्ट दिस थिंग एंड आई केप्ट दिस थिंग. इससे आपको क्या होगा, इससे यू विल एबल टू रिटेन एवरीथिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, और कहीं ना कहीं इट विल गो इनटू योर परमानेंट मेमोरी. और यही, and all these things are important in humanities, right? Humanities is all about having more and more discussion. Humanities is all about keeping everything in mind and having clarity on the things, right? And remember that every subject has equal importance, no matter it's natural science, physics, chemistry, maths, no matter it's humanities, nothing like that. Every subject has its own importance in this world and in this universe. You got to remember this, right? Nowadays, you know every subject की बहुत ज़्यादा importance है, right? Okay, so I'm sure you've understood. So now you have class, you have your class too. Okay, so okay, so that's what I was saying you. अब तो questions भी discuss हो चुके हैं इस chapter के. This chapter is almost over, completely over, right? So not tomorrow. I have my class, I think, on Monday. Yes, I have my class on Monday. So we'll start the next chapter on Monday definitely. और अपनी notebooks को maintain करना start कर दो, अपनी textbooks को maintain करना start कर दो. I'm gonna check it anytime soon. Okay, within 2-3 days, or start making your textbooks. Okay, I think the time has come to say you goodbye. So until then, take care all, stay safe, stay at home, and utilize your time as much as you can. And I have my class on Monday, right? So kindly utilize your time. And what else? So it's important to do systematic study, right? Things are not easy, not difficult. It all depends on approach. If we keep our approach right, everything will be right and everything will be understood very, very clearly, right? So I think I should stop share now. So bye bye, take care all.